Yes, students, good morning. Good morning, sir. Today we are going to discuss exercise 10.5, and before exercise 10.5 we will start a theorem which is very important theorem. Is it clear? Yes, sir. The theorem is a theorem number 10.8. थ्योरम नंबर 10.8 ये थ्योरम आपको बताती है स्टूडेंट्स वी हैव लेफ्ट एक्सरसाइज 10.4 एंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज very लेंथी so we will discuss this particular exercise after this UT. So in this particular UT3 10.4 is not included, so 10.5 is included. Is it clear? So each and every students will try to read exercise 10.5 instead of 10.4. Is it clear? कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 10.8 पर. Exercise 10.8 tells us angle subtended by an arc. So 10.8 exercise means 10.8 floor. Theorem 10.8 states that angle subtended by an arc at the center. Let us take AB is a arc. AB is the arc. By this particular arc AB, angle subtended at the center, that is angle AOB, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle. ये इसका मीनिंग इज व्हाट, अगर मैं इसको लूं और इस पर ये लूं, बस समझ आई, या इसको लें और ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, यानी आपको मेजर सेक्टर के अंदर कोई भी एंगल लेना है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. बात समझ आई? तो इसमें आपको अगर मैं गिवन लिखता हूं तो गिवन आपको है एंगल एओबी, ठीक है, एंगल एट द सेंटर, एंड एंगल एपीबी इज एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट द रिमेनिंग पार्ट of the circle. Is it clear? So here we are having only two things which are very important. One is angle subtended at the center and another one is angle subtended at the remaining part of the circle. If I take this one, this is A and this is B. This is the center O. So this one AOB is the angle subtended by this arc at the center, and APB is the angle subtended at the remaining part of the circle. So अगर मैं ये कहता हूं प्रूव क्या करना है, if this angle is 30 degree then this angle will be 60 degree. If this angle is 80 degree it will be 40 degree. If it is 0 degree then it will be 0/2. Is it clear? Or you can say if it is 10 degree then it will be 10/2. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. It means that ये एंगल इसका हमेशा हाफ रहेगा या ये एंगल इसका हमेशा डबल होगा. This is the main work which we have to do in this particular theorem. Given में क्या है, AOB
एक एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है और APB एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? अच्छा, TPT में आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल APB। ठीक है जी, यानी यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, या दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल। इज इट क्लियर? या ये इसका डबल है या ये इसका हाफ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप इसे जब करेंगे तो व्हाट विल वी डू? हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ड्रॉ ए लाइन POM। कौन सी लाइन ड्रॉ की है? POM। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ लाइन POM। समझ गए? इज इट क्लियर यहां तक? अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। जिसे लिखना है प्लीज राइट डाउन। उसे स्टॉप कर दे बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल AOP, कौन से ट्राइंगल में? AOP। OA इज इक्वल टू OP। OA किसके बराबर है? OP। क्यों? वाई दे आर इक्वल? These are the radii. Is it clear? These are the radii of the circle. Is it clear? If these are equal, ठीक है, so angle OAP is equal to angle OPA. Why? Angles opposite to equal sides are also equal. Yes. Angles opposite to equal sides are equal. Is it clear or not clear? If I take this angle as angle 1 and this angle as angle 2, let कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम। सो दिस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. नाउ एंगल AOM इज इक्वल टू, कौन है ये AOM? AOM, दिस एंगल। ठीक है, यहां से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये AO यहां पे M है, ये AOM कौन है ये? Sir, angle A plus angle It will be angle A plus angle P. So it will be angle 1 plus angle 2. Why? because up एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत इसमें? कोई मुश्किल काम इसमें? नाउ एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, बट एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है। तो यू विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 2, सो एंगल AOM इज इक्वल टू 2 एंगल 2 और नॉट। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बेटा समझ आया ये? एक बार और देखिए,
इन ट्राइंगल AOP में OA जो है वो OP के बराबर है, तो OA के सामने का एंगल OP के सामने के एंगल के बराबर होगा। सो OA अगर OP के बराबर है तो एंगल OAP एंगल OPA के बराबर होगा। मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 माना, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो एंगल AOM जो होगा, ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल AOM जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। सो एंगल AOM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? Twice of angle 2. ट्वाइस ऑफ एंगल AOM। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है जी, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइंगल। चेंज करते हैं। इन ट्राइंगल BOP, कौन सा ट्राइंगल लिया? BOP. BOP, OP इज इक्वल टू व्हाट? OB। कोई प्रॉब्लम? हेंस एंगल OBP इज इक्वल टू OPB के। लेट अस टेक दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। इज इट क्लियर? नाउ एंगल BOM, नाउ एंगल BOM इज इक्वल टू एंगल 3। लेट अस टेक ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, so it will be angle 3 plus angle 3, so it will be 2 angle 3 or not? Yes. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और इधर it will be BOM and BOM. Is it clear to everybody or not? Yes, sir. एक बार और देखिए, in this particular triangle POB, ठीक है, OP is equal to OB हुआ, तो OP के सामने का एंगल 3, OB के सामने का एंगल 4 के बराबर हुआ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ अब आप इसने ये एक्सटीरियर एंगल देखा, तो एंगल BOM जो होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा, लेकिन 3 पहले से ही 4 के बराबर था, तो एंगल BOM किसके बराबर हो गया? 2 एंगल 3 के। इज इट क्लियर? अब आपके पास एक इक्वेशन वो सेकंड थी और ये इक्वेशन क्या होगी? थर्ड हो गई। अगर मैं बात करूं बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से आपको क्या मिला? एंगल AOM प्लस एंगल BOM इज इक्वल टू Angle twice of angle 3. 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। 2 आपने कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हुआ या नहीं बेटा? एंगल 2 हु इज एंगल 2? Angle APO के बराबर। एंड व्हाट इज एंगल 3? एंगल BPO के बराबर। ठीक है, या BPM के बराबर। इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 एंगल पूरे को अगर ज्वाइन करता हूं तो इट विल बी APB और नॉट? Yes, sir. सो इट विल बी 2 एंगल APB। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये यहां से यहां तक अगर मैं लेता हूं, इट विल बी एंगल AOB और नॉट? Yes, sir. तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल APB। इज इट क्लियर? क्या हुआ? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी किसी आर्क से सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने हुए एंगल का डबल है। क्या ये प्रूव हो गया यहाँ पर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट, क्लोज।